इन 2018 जब मैं 18 साल की थी तब मैंने एक रात मुंबई के फुटपाथ पे गुजारी है एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि what exactly happened that I had to sleep on a footpath. Hi guys, welcome back to my channel Vaishnavi Thakur. I cannot believe I'm doing this yet again. So you guys love my previous dating disaster जिसमें मैंने शेयर किया कि मेरा ब्रेकअप कैसे हुआ था and you guys have convinced me to share more story time videos, so here it is. So I'm gonna call this a life disaster and it begins with college of course. मेरे सारे ट्रॉमा शुरू और खत्म कॉलेज एंड स्कूल से ही होता है. I hated my school, okay? I hated my childhood. I hated the bullying. I hated everything about it. तो मुझे आज भी ऐसे नाइटमेयर्स आते हैं and I wake up in the middle of the night and I'm just like मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है. So yeah. For everyone who doesn't know this, I am a BCom honors graduate from SRCC. उसके बाद हाँ मुझे MBA वगैरह करना था but I just said I'm gonna do YouTube full time. So here I am. Let's rewind back to 2018. जब मैं कॉलेज में घुसी थी ना तब there were lot of societies that I wanted to take part in. So I was part of placement cell, Enactus, Comsoc, Ecosoc, ये soc, वो soc, हर soc. बट ये कहानी है Enactus की. जिसको भी नहीं पता है, Enactus is a not-for-profit social entrepreneurship organization which is run basically by students. So out of the 800 students in a batch, 30 students get selected to be part of Enactus community. It is the most difficult society to get into. Yeah, this is the summer of flags. So I got into Enactus and I hated it. The hours were too long. There was no real guidance from seniors, I would say. Plus, to be honest, I was juggling between placement cell and Enactus, and I was very, very fed up. But मेरे अंदर वो चुल भी थी कि कुछ करके दिखाना है, ऐसे एकदम ऐसे खाली नहीं बैठना है. तो I used to volunteer for some things जो गुड़गांव में हो जाती थी. And otherwise, there were some things that were happening outside of गुड़गांव, जैसे कि अमृतसर जाना होता था. And they would like literally tell us कि अमृतसर जाना है at 7 PM and they'll be like volunteers चाहिए अमृतसर जाने के लिए at 11 PM tonight. 6:30 बजे तो कॉलेज से मैं निकल के घर पहुंचूंगी. उसके बाद मैं नहाऊंगी धोऊंगी. उसके बाद मैं वापस ISBT जाऊँ. उसके बाद मैं अमृतसर जाऊँ. उसके बाद मैं वहां पर रह के वापस No, I am not ashamed of the fact that Papa has always kept me like a princess and I was not cut out for this, bro. तो मैंने अमृतसर जाने के लिए कभी वॉलंटियर नहीं किया but there was an opportunity that came कि आप लोग मुंबई जाओ. There's a competition and वहां से कुछ फंडिंग रेज हो सकती है अगर हम वो कॉम्पिटिशन जीतते हैं तो. कॉम्पिटिशन बेसिकली थी कि कुछ इन्वेस्टर्स के सामने हमें प्रोजेक्ट को पिच करना था. इमेजिन शार्क टैंक बट एकदम सस्ता वर्जन. We landed in Mumbai at around 4 PM. मैं लैंडेड ऐसे इस्तेमाल कर रही हूँ जैसे कि तो हम फ्लाइट से गए थे. नो ब्रो, हम फ्लाइट से नहीं गए थे. दिस इज वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग. हम 10 लोग थे एंड हमें तत्काल में 2 दिन में टिकट चाहिए थी. सो वी बुक्ड अ राजधानी जिसपे हमें 4 टिकट्स मिली थी. 4 टिकट्स, ओके, 4 कंफर्म टिकट्स, 4 बर्थ्स एंड ऑल 10 of us were traveling on just 4 tickets. It was so uncomfortable. Imagine 18 hours of journey. You're just sitting. तुम्हें सोने को भी नहीं मिल रहा है, तुम्हें लेटने को भी नहीं मिल रहा है. एंड जो पतली पतली लड़कियां थी वो एक बेड पे 2 लोग ऐसे सो पा रहे थे. बट बिकॉज ऑफ माई साइज no one wanted to share the bunk with me, so I had to just sit. It was horrible. I hadn't slept the entire night and then we reached Mumbai at 11 AM and then we had to figure out कि हमें exactly कहाँ जाना है because हमें कुछ details पता नहीं थी. Where is the hotel? Where do we have to go? And it turns out it was not a hotel. It was a PG. As comfortable as it can get for youngsters, I guess. I should count my blessings. At least एक पूरा बेड तो मेरे को मिला ना. So after that long uncomfortable night, बेड दिखते ही बस मेरे को था मुझे सोने दो, please मुझे सोने दो. And everyone was like, dude, हम सोएंगे नहीं, हम चलते हैं, हम बाहर जाएंगे, हम घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे. नहीं नाचना है, नहीं घूमना है, बट नहीं हम घूमेंगे फिरेंगे. आई एम अ पर्सन हु नीड्स हर 8 hours of sleep, okay? तुमको जाना है तो जाओ ना यार, मेरे को सोने दो यार. बट नो, आई कांट डू दैट बिकॉज यू हैव टू शो दैट यू आर अ टीम प्लेयर. सो हम पीजी में पहुंचे, नहाए, थोड़ा सा खाना खाया एंड वी वर लाइक लेट्स गो टू लोअर परेल. 1 घंटा ट्रैफिक में अटकने के बाद हम लोअर परेल के वो मॉल में पहुंचे. वी वेंट टू H&M, फर्जी कैफे, ये कैफे वो कैफे सब कर लिया एंड देन वी लेफ्ट द मॉल एट 7 PM. पहुंचते पहुंचते हमें बज गए 8. उसके बाद थोड़ा क्लीन अप किया एंड देन आई थिंक वी वर टॉकिंग, प्लेइंग कार्ड्स और समथिंग एंड देन इट वाज 11:30 PM and everyone was like let's go to McDonald's because we are hungry. So we again all booked a cab. We went to Lower Parel ka mall to eat McDonald's at 12 AM in the night. Okay, maybe this sounds fun to someone but it is not fun, bro. It is not, okay? My body was screaming कि बस मुझे सोने दो. Let's recap a bit, okay? Day 1, I wake up, I reach college by 10 AM. 6 बजे तक हमारी मीटिंग्स etc. था. 7 PM हमारी राजधानी ट्रेन है. अगले दिन 12 या 3 बजे तक हम मुंबई पहुंचे. ट्रेन में मैं सोई नहीं, बाय द वे. मुझे दिन में भी सोने नहीं दिया. एंड मैकडी में खाना ठूसने के बाद I was like finally रात हो गई, अब तो सब सोएंगे. Guess what? We all came back to the PG at 1 AM and the seniors said अब करते हैं rehearsal and prep for the competition tomorrow. 1 बजे रात के. So we all went to the terrace and yeah, हवा अच्छी थी, I won't deny that. But हम तब रात के 1 बजे रिहर्सल कर रहे हैं कि
हमें क्या पिच करना है, क्या है एग्जैक्टली सब। 4:30 तक हम छत पे थे। छत पे ना चेयर्स थी ना बैठने की जगह थी, बस ऐसे सीमेंट वाली जमीन पे बैठे हैं या तो फिर खड़े हैं, घूम रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग दैट माय बॉडी वाज स्क्रीमिंग? 4:30 बजे तक रिहर्सल करने के बाद मैं फाइनली बेड पर लेटी एंड आई स्लेप्ट लाइक दिस। द कॉम्पिटिशन वाज सपोज्ड टू हैपन ऑन अ संडे बट आई वाज वोकन अप एट 7:30 AM। ब्रेकफास्ट करना है, ये करना है, वो करना है, ब्ला ब्ला फलाना ढिमकाना। मैं 7 बजे उठी। आई जस्ट ब्रश्ड माय टीथ इन अ ज़ॉम्बी मोड। आई वेंट टू द बॉयज हॉस्टल टू रिहर्स विद माय पार्टनर बिकॉज़ एक लड़का और लड़की पिच कर रहे थे एंड दिस इज व्हाट आई केम आउट ऑफ माय माउथ। आई कैन पिच करना है ना। आई वाज लाइक एक सारी लाइट This is what was coming out of my mouth. मेरी आवाज चली गई थी पूरी. I completely lost my voice. I tried gargles, I tried hot water, but this is all that was coming out of my mouth. मुझे लगता है कि हमारी पिच नहीं हो पाएगी. मैं ऐसे बात कर रही थी, legit. So I did what I always do. I called पापा. पापा ने प्रेस्क्राइब करी मुझे कुछ मेडिसिन एंड वो लेने में चली गई फिर वॉक पे क्योंकि मुझे मेडिसिन स्टोर ढूंढना था ऑफ कोर्स. एंड गेस व्हाट, मुंबई में संडे पे मेडिकल स्टोर्स भी बंद होते हैं. गुड़गांव में तो बंद नहीं होते भाई. 1.5 किलोमीटर चलने के बाद मुझे एक मेडिकल स्टोर मिला. मैंने दवाइयां खरीदी, मैं वापस आई, मैंने दवाइयां ली एंड कुछ फर्क नहीं पड़ा. सो मेरी तबियत हो गई है कंप्लीटली आउट. सो आई वाज लाइक लेट मी जस्ट रेस्ट फॉर अ व्हाइल, मुझे थोड़ा सा सोने दो. एंड मेरे सीनियर्स ने बोला नहीं नहीं हमें तो भी प्रैक्टिस करनी, तुम रेडी हो जाओ, हमें जाना है. आई वाज लाइक ग्रेट. आई गॉट रेडी, वी वेंट टू द वेन्यू एंड जब मैं वहां पे गई तब मैंने बोला माइक 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 माइक. आवाज नहीं निकली. वो होस्ट भी साला हंसने लग गया था मेरे पे आपकी आवाज को क्या हो गया. एंड जब मैंने एक्चुअली पिच दी तब टीम के सारे लोग ऑडियंस में बैठ के हंस रहे थे. बट ऑल्सो वेल दैट एंड्स वेल बिकॉज़ वी वन द फर्स्ट प्राइज इन दैट. एंड स्लीप वाज सो क्लोज टू मी, आई कुड लिटरली टेस्ट इट. बट after the competition we all went out to Juhu beach to celebrate and I think that was the first time I went to a beach in my life that I remember. वो भी रात में गई थी मैं and it was very dirty of course, मुंबई जुहू बीच. बट फिर भी वहाँ की पाव भाजी, वहाँ का गोलगप्पे सब मैंने खाया. मैंने थोड़ी सी चुस्की भी खा ली थी because I was like गला खराब हो गया है तो और खराब हो जाने दो, पूरा ही खराब हो जाने देते हो, फिर उसको घर पे जाके ठीक करेंगे. सब खाने के बाद वी केम बैक टू द पीजी एंड आई वाज लाइक 9 बज गए. आई वाज लाइक सो जाते हैं अभी सब लोग टाइम से, वैसे भी कल शाम को हमारी फ्लाइट है. तब बना एक नया प्लान. द सीनियर सेड वी ऑल आर गोइंग टू गो टू मरीन ड्राइव टू वॉच द सनराइज. आई वाज लाइक सनराइज, सूर्योदय, ठीक है 4:30-5 बजे चल लेंगे. नहीं 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 नहीं, हम ओवरनाइट स्टे करेंगे ताकि हम अगले दिन सनराइज जैसे ही होगा हम वहां पे बैठे रहेंगे. दैट इज द स्टूपिडेस्ट थिंग आई हैव एवर हर्ड. एंड ये सुनते के साथ ही मेरे को कुछ हो गया एंड देन आई जस्ट walked out of the PG and I was like I can't breathe, something is happening to me. And then I puked my guts out on the footpath. I was completely sick. मेरा पेट खराब हो चुका है, मेरा गला जा चुका है, I am feverish and all I want is to sleep. मेरे को सोने दो. तो मैं अपने सीनियर को जाके बोला कि आप लोग जाओ, आप मरीन ड्राइव पे बहुत ही ब्यूटीफुल सनराइज होगा, अब देख कर आओ, मुझे फोटोज भेज देना, मुझे सोने दो. To which they said अरे कुछ नहीं होगा, आ जाओ. And hence I was dragged to Marine Drive. It was 11 PM at the night and we were just sitting at Marine Drive, just sitting, talking, enjoying the breeze. 1-2 घंटे के लिए अच्छा लगता है यार, पूरी रात थोड़ी गुजारनी है उधर. बट नहीं, हमारे सीनियर्स को तो गुजारनी है. एंड मेरे को बस ऐसा हो रहा था कि भाई मेरे को और उल्टी ना हो जाए, मेरे को इतना ऐसे हो रहा है, I cannot, I want to sleep. I was feeling so fucking sick. तो मैंने अपना बैग लिया, मैंने किसी एक और बंदी का बैग लिया and I legit slept. I lied down on the Marine Drive का फुटपाथ with the bags as my pillow and I slept, legit slept for 3-4 hours. उसके बीच में भी interruptions थी. These guys ordered Domino's pizza and they were like तू खाएगी and I was like they were like hey तू मत खा, तेरा भी हम ही खा लेंगे. खा लो भाई, मुझे सोने दो बस. That was my only demand. And बीच में पता नहीं क्या रात में उठ के इनको हो गया कि फोटोज खिंचाते हैं. तो जो पत्थर है ना, we climbed down those पत्थर एंड फिर हम वो बीच में पूरा सब लोग अंदर चले गए, पानी के अंदर फोटोज खिंचा रहे हैं. Bro, it's 4 fucking AM in the night. Let's just fucking go and sleep. 5 बजा के देख लेंगे सूर्योदय. In the midst of all मुझे लग गई हिचकी एंड 10 लोगों में से किसी एक बंदे के पास बोतल नहीं थी पानी की. Not one person thought it will be a good idea to at least carry a water bottle to Marine Drive अगर आप पूरा नाइट आउट कर रहे हो तो. So we all started walking in search of water bottles at Marine Drive. No general store was open. मुझे सिर्फ एक पेट्रोल पंप दिख रहा था और मेरी हिचकी बढ़े जा रही है एंड मेरे को था कि साली हिचकी तुझे भी अभी आना था. तो फिर मैं पेट्रोल पंप पे गई एंड भैया had his personal bottle जिसमें इतना पानी भरा था और वो 10 लोगों में बंटना था. I took 3 gulps and was like भाई हिचकी you have to fucking go in these 3 gulps and thankfully it went. And मैं constantly check कर रही हूँ कि सनराइज साला कितने बजे होने वाला है. And then हुआ finally sunrise. And guess what guys? Sunrises in the
east and sets in the west. And Marine Drive faces west-southwest, which means that it's a perfect spot for sunsets. क्योंकि सनराइज तो हमारे पीछे हो रही थी। 6-7 घंटे हम वहां पे बिताकर हमें पता चल रहा है सन तो पीछे से आ रहा है। You fucking bloody fools! फिर तब एक बंदा वहां पे था जिसने बोला भाई मेरी ना फ्लाइट थोड़ी जल्दी की है। I was like मैं तेरे साथ जा रही हूँ, मैं जाऊंगी तेरे साथ, I am coming with you even if my flight is late की मैं एटलीस्ट पीजी में जाके सो तो जाऊंगी। भाई ये क्या बकचोदी चल रही है, सनराइज तो दिखा भी नहीं हमें। I tagged along with him, I went to the room and I just slept. Oh my god, I slept for 2-3 hours. मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मेरी आवाज तभी भी गई हुई थी, बट उसके बाद भी हम लियोपोल्ड कैफे गए which was actually quite nice. I also shopped a little something from the streets of Mumbai and then हमारी late night 2 बजे की फ्लाइट थी। So we all rushed to the airport at 11 p.m. and this might be TMI, but I was stuck in the washroom for at least an hour because my body had given out on me. It was like, bro, you have fucked up my digestion system, you have fucked up your sleep, you have fucked up everything. I'm gonna fuck you up now. एयरपोर्ट पे ब्राउनीज वगैरह खा रहे थे लोग and I was just like, flight कब? When are we boarding? When are we boarding? We finally boarded. I slept in the flight throughout. We came back to Delhi. I came home. I bathed. I put my luggage and I just slept. I think I slept for 16 hours that day. मैं इतना कभी नहीं सोती हूँ. But yeah, that is a story of how I spent a night on footpath in Mumbai. I'm sorry if this is not what you were expecting. I feel very, very blessed and grateful to not have had to spend a night on a footpath ever. Like I said, Papa ki pari. But yeah, this was just one of the times when I couldn't say no, you know. If any of my college peers are watching this, I love you now. That time I really, really hated you. In hindsight, it was a good experience, I would say. Because itna crazy मैंने life में उसके बाद कभी नहीं किया है. So yeah, that was it for today's video. I hope you enjoyed the story. Before you go, please go check out my affiliate shop. I'm gonna put the link of all my favorite outfits, makeups and products right here. If you like anything and if you shop from here, I earn some commission out of it, which would help me keep going with these long format videos for you guys. You can also check the product links in the description below and let me know what would you like to see next on my channel. Like, share, subscribe. Thank you so much. Bye.